Hello everyone, welcome to our online classes. Student, today's lecture is for class 12. Student, in this lecture we will study about the Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law is the most important topic of your electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए, उनकी नॉलेज के लिए कूलॉम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, born in 1736. He is a French scientist and he started his career with the engineering, in the military engineering. Okay students, after retirement he came to the Paris and he started his research. In the 1776 he invented a torsion balance. Torsion balance is a equipment or a device which measure the forces. टॉर्सन बैलेंस ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर करती है. टॉर्सन बैलेंस को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को मेजर करने के लिए यूज किया. सो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आज अगर हम दो चार्जेस या दो चार्ज बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जानते हैं, देन बिकॉज ऑफ ओनली चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट Coulomb's continue his experiment and find the inverse square rule. Inverse square rule, and the inverse square rule explains the formula which find out, या कह सकते हो which help us to find out the magnitude of the electrostatic force between two charges. So student, let us study. Coulomb's law is a quantitative representation which give the magnitude of the electrostatic force and also the direction of the electrostatic force. So what says Coulomb's law? Coulomb ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको ये बताया कि जो फोर्सेस दो चार्जेस या दो चार्ज बॉडी के बीच में लगती हैं वो कितना होती है, या फिर उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उनकी न्यूमेरल वैल्यू कितनी होती है, या फिर उनका जो डायरेक्शन है वो किधर लाई करेगी. So Coulomb's law states that the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely to the square of the distance between two charges. Students, if the distance between two charges is much larger than their size, so we consider the charges as the point charge. अगर charges के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो हम charges को point size charge consider करते हैं. Okay? Now it states that, what says the Coulomb's law? Coulomb's law states that the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely to the square of the distance between two charges. It means to say that दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या
repulsion, we can say that the electrostatic force. दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लेट्स सी, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely to the square of distance between them. Okay, student. Now suppose that if two charges are Q1 and Q2, placed r मीटर अपार्ट, दो चार्जेस हैं जिन्हें हम पॉइंट चार्जेस कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हम यहाँ पर एन आर्बिट्री चार्जेस ले रहे हैं. सो टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड r मीटर अपार्ट टू ईच अदर, दो चार्जेस एक दूसरे से r मीटर दूर रखे हुए हैं. सो द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between their thus force of attraction or repulsion, it means the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their charges and इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ कंबाइन द बोथ इक्वेशन, वी गेट ऑन कंबाइनिंग both equations, first and second, we get force equals to the mod. Why we applied the mod here? हमने यहाँ पे mod apply क्यों किया है? Because we don't know about the sign of the charges. So mod represents the absolute value of the क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पे चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, अगर चार्जेस हमारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं देन ऑल्सो आफ्टर ओपनिंग द मॉड आंसर विल बी पॉजिटिव. ओके, सो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Coulomb's law. Now if we apply some constant, an arbitrary constant in place of the proportional, so we get the next F equal K Q1 Q2 upon r square, where K is a arbitrary constant whose value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जो SI यूनिट है किसकी, K की, वो कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर.
कूलाम्स ने इस फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट चार्जेस के वैल्यू को 1 कूलाम रखकर किया। उन्होंने अज्यूम किया कि अगर हम दोनों चार्जेस को 1 कूलाम कंसीडर करते हैं एंड द डिस्टेंस विल बी 1 कूलाम, so the final force between the charges, if Q1 equals to 1 coulomb, Q2 also the 1 coulomb, and R equals to the 1 meter. So the force will be K into 1 upon 1. It means 9 into 10 to the power 9 Newton. Okay, student. Now, after the many experiment, the value of the K would we find that one upon 4 pi epsilon naught. K की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमको? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ओके स्टूडेंट। एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू टोटल हमारे पास कितनी होती है? 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, नाउ द एप्सिलॉन नॉट इज known as the permittivity of free space. Permittivity, what is the permittivity? Permittivity of the free space explains us how is the electrostatic force between two bodies work. It means अगर मीडियम हमारा एयर है, दो चार्जेस के बीच में सबसे सुटेबल मीडियम हमारा क्या होता है? एयर होता है। ओके स्टूडेंट, सो अगर मीडियम हमारा एयर है तब उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे वर्क करेगा उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। अगर हम यहाँ पर एयर की जगह किसी और मीडियम को प्लेस कर दें, इट मीन्स वन चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, अगर हम इन दोनों के बीच में कोई भी अदर मीडियम प्लेस कर दें, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, माइका, ऑयल, प्लास्टिक एक्सेट्रा, देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस शुड बी रिलीज्ड। कितनी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। आप कह सकते हो कि डेफिनेटली वो कैसी हो जाती है? कम ही हो जाती है। ओके स्टूडेंट, सो द एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस whose value is 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton meter square let us परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की ऐसा यूनिट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है। सो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको निकालना सीख लीजिए। यहाँ पर जब आप k की जगह पर इसकी मेन वैल्यू पुटअप करेंगे देन यू गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। This is the final formula of the electrostatic force given by the Coulomb's law. Okay, so epsilon नॉट हमारा यहाँ पर है, हमें ऐसा यूनिट किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। नॉट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? जीरो। हम इसको एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। सो द एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू द Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R square. Okay students, so you can see that here
there are the two quantities which participate in the SI unit, because 4 is a numeral value, it has no SI unit. Pi is also a numeral value, it has no SI unit. So the SI unit कूलाम, चार्ज की कितनी होती है कूलाम, इसके लिए भी हम यहाँ पे कूलाम रखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मीटर स्क्वायर. एंड दिस फोर्स is also come in the denominator, so the SI unit of force is Newton. Now the final SI unit of epsilon naught is Coulomb square Newton meter square. अगर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर को ऊपर लेकर आते हैं, then we get Newton inverse meter minus 2 c square. This is the SI unit of epsilon naught. अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे. Okay student, now we will study the next topic in our next lecture.